Good morning to all of you, my dear listeners, students, PG students, research scholars, and other professionals who are contribute in the professionalism by the professionalism as per the system. Today I am starting benchmarking before the ethical formulations. What is ethics? What is the ethical human resource management and the system information system human resource audit? Among them, one system is the known as benchmarkings. Mean human resource management audit system refers to the process of efficiency, effectivity, and the potential of the employees, including the contributions. Now, benchmarking is a practice of comprising business process, practice of performance, metrics based for the growth, metrics to based for the industry, metrics to based for industry, industrial growth, and individual capacities distribution classification. Under these procedures, this one is the best practice for the analysis of the company's growth. Under this procedure, we measure the system of processing, system of output, system of input, process, and output cycle, and the consuming time, कितना समय हम लेते हैं. Next is the quality product. Before the quality product, we maintain the quality of work life and measure the cost. We analyze under the three dimension procedure. Number one, man. Number two, material. And number three, आपका technology. So investment procedures manpower also as a cost, and the evaluation on the behalf of the aspect whatsoever decided by the organization according to the mission, according to the vision, according to the system of organization, system of industry. Evaluate various types of aspects like that the processing, quality of work life, quality image, availabilities, सारी चीजें, and improve to the according to the matrix whatsoever decided by the standard, decided by the administration, human resource administration, as well as any other who is responsible for the that, to clear justify the individual potential on the behalf of the individual potential, individual matters, level of performance, and improve the organizational practice. So benchmarking refers to the provisionals, process, practice, performance, matrix, best metrics whatever industry, quality, cycle time, quality, evaluation, quality practice, measure cycles, evaluate different aspects whatever decided by the, improve the metrics, and they improve the different organizational practices. So now we know about the types of metrics. There are two types. Internal benchmarking companies. Under the procedure of internal benchmarking, companies analyze the performance between the group, team, with an organization. Managers function. There are two types of function: managerial function and the operative function. Operative functions also they contribute by the participants, by the employees and employer, administrative wings and the workers wing. These are the operative phenomena. They involve different level, different things, different types of participation, contribution in support to each other.
But managerial function, which is the controlled under the procedure of administration by the system of administration, like that the planning, policies, strategification, implementation. Planning is the refers to the under the mission, and mission is the control under the vision. Whatsoever the vision about the organization, primarily organizational administrative system decides that the vision, and for the fulfillment, a part of vision is calculated by, is the decide a part by the mission annually 1 year, 12 month, 3 month, 4 month mission, organizational mission. For the achievement of the mission of the organizational objectives, we find out the plan, a systematic plan by the controlling system, by the budgetary system, by the financial provisions, by the participatory provisions. So those people who involve directly, indirectly, and different types of actions. And for the implementation and formulation of the individual things and others, we formulate a system of policies and the achievement of the organization known as the strategification. Everything is or implementation procedures. So process, practice, strategy, and the performance. Process, process, practice, strategy, and the performance. This one is the provisions. External benchmarking, but the companies performance across the industry. Who is the competitor? Who is the competitor? Your competitor. Competitors potential. Competitors systems. System of involvement. System of governance. Rules and regulation of the governance. If your business under the international or continental provisions, then what's about the governance policy regarding to the financial system, foreign system, foreign regulatory systems. So different dimension, इन चीज़ों पे हम फॉरेन रेगुलेटरी सिस्टम पे, इंटरनेशनल ट्रीटी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम किसी और स्लाइड में बात करेंगे. जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्लास में भी देख सकते हैं, और जिनको इन तरह के इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन पे या लेजिस्लेशन पे कुछ है, उस तरह के क्लासेस को आप अटेंड करेंगे तो ये क्लियर होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के सिनेरियो से हम बना रहे हैं. तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के बेंचमार्किंग की बात करते हैं. प्रोसेस बेंचमार्किंग है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, प्रोसेस में सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं. फाइनेंशियल में हम फाइनेंशियल सिस्टम, उसके मैट्रिक्स, उसके बेनिफिट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड रेट ऑफ डिक्लाइन एंड स्टेबिलिटी रेट्स, इन पे हम एनालिसिस करते हैं. ये फाइनेंशियल बेंचमार्किंग है. परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं. We classified to the according to the proficiency, according to the skill of the employees, individual based पे, supervisor and their subordinates based, department based, group based, department based, and the team based, and the organization based performance system. Now product benchmarking, department, be how much produce product, quality, likes, packaging, equality of the comfortability by the consumer, पैसे का, क्वालिटी का, पैकेजिंग का, अवेलेबिलिटीज़ की, एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं जो उसको सेल कर रहे हैं, उनके बिहेव्स, उनके लाइजनिंग्स, इन सारी चीज़ों पे हम प्रोडक्ट के बेंचमार्किंग में, कि हमारे प्रोडक्ट की जो आइडियलिस्टिक कंडीशन है एनवायरनमेंट में, कस्टमर्स को जो चाहिए हम वो फुलफिल कर रहे हैं डिफरेंट डायमेंशन के साथ में. ये बड़ा बिग इशू है, अभी ऐसे नहीं हो पा रहा है, इसको हम किसी और उसमें करेंगे. स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, हाउ वी अचीव द मैक्सिमम कोर एरिया ऑफ द कंज्यूमर, maximum core area of the abilities, and the functional benchmarking, and function under the processing, under the intake, under the product, under the
benchmarking, brand investing, and then the advertising and different types tools who classified to the consumers products and the monies जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, cost of value. Benchmarking the public sector, different you can analyze the different factors between the better and the superior and better and different categories whatsoever decided by you, public sector and the private sector. The public sector depending each and everything on the behalf of the regulation, on the behalf of the governance, now on the behalf of the controlling authorities, and the issues whatsoever decided by the governance. But private sectors, investors and key prospectus, they want to the return. They don't, they cooperate to you with your requirement and they want to the return. So इंडस्ट्री लेवल, रीजन लेवल या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एंड यूनिवर्सल बेंचमार्किंग, यू आर द बेस्ट इन द यूनिवर्स, you are the best liking, you are the best cadre, you are the best performers in the world, in the system of word analysis. सवाल ये उठता है कि हम इस बेंचमार्किंग को यूटिलाइज क्यों करें, सिस्टम के द्वारा क्यों यूटिलाइज करें, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्यों यूटिलाइज करें. तो सबसे बेसिक चीज़ है कि हम इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं. हाउ मच पोटेंशियल वी हैव, हाउ मच पोटेंशियल एम्प्लॉय वी हैव, हाउ मच पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स, इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट, दिस वन इज द क्लासिफाइड टू द इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट्स. जितने हमारे बेस लाइन की मैट्रिक्स बनी थी और ग्रोथ का जो रेट था हमारा, उस ग्रोथ के रेशियो में जो हम इंडिविजुअल पर्सन्स की उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लासिफाइड करते हैं और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं, तो वहाँ ये पता चलता है कि कितना अचीवमेंट हुआ. लाइक दैट 45% अचीवमेंट हुआ. हमने बनाया था 65% का, 20% का ये डिसबैलेंस जो आया, जो हम अचीव नहीं कर सके, वो गैप है. इस गैप को हम फुलफिल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे, है ना. तो ये मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम डेवलप करेंगे जहाँ से हम इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं. इनोवेशन को हम, पार्टिसिपेशन का एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ईच एंड एवरीबडी कोऑर्डिनेट कोऑपरेट टू द अदर्स, टू ईच अदर्स सिंसियरली. यहाँ हम इनोवेशंस के मेथड से जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं से उनको हम सजेस्ट करते हैं लोगों को. हो सकता है उसमें कुछ इम्प्रूव करके, उसमें करेक्शन करके, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करके, उसमें किसी तरह के और लोगों के आइडियाज़ को मैच करके एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बेटर आइडिया हमारे पास डेवलप हो जाए. तो ये कम्पिटिटिव मार्केट्स के इस स्ट्रेटजी के लिए हम उस पर विन कर सकें, इसके लिए हम, और उनके नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर सकें, इसके लिए हमारे जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो फेयर होना चाहिए. तो ये कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही हम कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, वही हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहा है, और जो रिटर्न दे रहा है उसके रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना ज़रूरी है. चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हो रही हैं, इन पे हम डिस्कस करते हैं, और इन डिस्कशन के साथ में उसको भी ऐड करते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं. एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. चेंज करना ज़रूरी है. परफॉर्मेंस गैप जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इम्प्रूव योर द इंटेलिजेंसी, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंसी, एक कॉन्शियसनेस कम्पिटिटिव सिस्टम डेवलप हो जाता है जब हम करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड नहीं, कॉन्शियसनेस, एक पॉजिटिव सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो इम्प्रूव करे इंटेलिजेंसी को. उन्होंने इतना अच्छा किया, हम और अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं. उनका क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो पैकेजिंग के बहुत अच्छा कर लिए, तो हम उससे अच्छा एक पैकेजिंग करें जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो. ये सब बेनिफिट हम लोग
देखेंगे और उसमें पाएँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट टू बेंचमार्क, हमें चाहिए क्या? हमें चेंज चाहिए, सिस्टम में चेंज चाहिए, रूल में चेंज चाहिए, नॉर्म्स में चेंज चाहिए, स्ट्रैटेजी में चेंज चाहिए, प्लान में चेंज चाहिए, कोऑपरेशन और कोऑपरेशन की टीम में चेंज चाहिए, किस तरह के चेंजेस चाहिए? ये हमें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम इम्पॉर्टेंट है या कोई मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट, कोई कम इंटेलिजेंस है कोई मैक्सिमम इंटेलिजेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस सबकी है, लेकिन सिचुएशनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें सब लोगों को इम्प्रूव करना है, करंट स्टेटस को देखना है, और उस करंट स्टेटस में जो प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लोगों को इम्प्रूव करेंगे, और इसी से ही हमें एकदम सिस्टम से है ये चीज़ें, कलेक्शन हम करते हैं इंफॉर्मेशन का, और ये इंफॉर्मेशन 100% अगर नहीं है तो 80% तो है, ये इंफॉर्मेशन लोग करेंगे, और बाकी जो बचता है वो जो डेटा कलेक्शन है, उस डेटा कलेक्शन के साथ हम इसको डेवलप कर लेते हैं, और जो फाइंडिंग्स हैं उस फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम प्लान को सेलेक्ट करते हैं। ये जो प्लान है ना आपका, वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस, प्लान और फाइंडिंग, डिसीजन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डाटा। तो ये हमारे साथ में सिस्टम था। एक मॉडल आया था जेरोक्स 12 मॉडल का, स्टेप्स है इसमें बेंचमार्किंग के प्रोसेस में, हमने क्लास में भी बताया है। जो लेक्चर सुन रहे होंगे, ऑनलाइन के लेक्चर जो सुन रहे होंगे, उन्हें भी मिल रहा होगा, नीचे आपका नंबर है वो सब देख लेते हैं। इसमें इन्होंने फेजेस डेवलप की, 12 फेजेस बताए हैं, और मीन 12 फेजेस में सेम प्रोसेस है। फेज 1 में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, और प्लानिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट टू बेंचमार्क, जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर सकें। सेकेंड में है फाइंड द बेंचमार्किंग पार्टनर्स, कौन कौन से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी पोटेंशियल, उनके सेंसिटिविटी, उनके कॉन्शियसनेस को हम देखते हैं। डिटरमाइन द डाटा कलेक्शन मेथड, मेथड हम जो कलेक्शन कर किए हैं वो क्या है, उसमें फेक नहीं आना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का मर्सी, किसी भी तरह का डिओशन, किसी भी तरह का वो नहीं आना, एक्यूरेट होना चाहिए, कंक्रीटली डिजाइन किया हुआ एक एनालिसिस किया हुआ एक डाटा आपको चाहिए। ये फेज 1 था, प्लान करते हैं इसमें। प्लान करने में आपका आइडेंटिफिकेशन, फाइंड आउट द बेंचमार्किंग पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टिसिपेंट, डिटर्मिनेशन और कलेक्शन ऑफ द मेथड, क्या करते हैं। फेज 2 में हम लोगों क्या करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, जो हम लोगों का करंट परफॉर्मेंस गैप है उसको देखते हैं, कितना गैप रह गया, 20%, 10%, टाइमिंग क्या है। अगर 6 मंथ में हम 20% के गैप हैं, तो 12 मंथ में हम, अगर यही रेशियो चला, हम इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो 40% हो जाएगा, एक साल में 40% का गैप हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप है ये। अगर 2% का है तो 2%, बहुत मार्जिन पे बिजनेस हो रहा है, तो आपको ये गैप को आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंडरी, अब प्रोजेक्ट फर्दर फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल, अभी आपने 60% का बनाया, अब आगे जो कंपटीटर हैं आपके वो 90% पे काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। कंटिन्यू हम करते हैं इसी में। फेज है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं, इसमें क्या है, कम्युनिकेट द फाइंड एंड गेन द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पे बात करते हैं, क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंडिंग लेवल्स क्या है, क्या हम अचीव कर सकते हैं, टारगेट हमने कितना रखा है, उसको हम, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे लोगों के पास होना चाहिए, जिससे लोगों की इफिशियंसी आए, ये कम्युनिकेट होना चाहिए इसमें। और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से एक फंक्शनल गोल को इस्टेब्लिश करना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि ये एफर्ट, सबका एफर्ट्स इक्वल हो, और उसे डेवलप करेंगे सारे लोगों का, सब लोगों का टारगेट होना है ना। फेज 4 में एक्शन करते हैं, अब करना क्या, सारी चीज़ बना लिया, टू डेवलप द प्लान एक्शन, कैसे कैसे करना, कौन सी टीम लीड कर रही है, कौन सी टीम इसको सपोर्ट कर रही है, कौन सी टीम के क्या साथ में, किन के टेक्नो है, कौन प्रोफेशनल है, कौन से अलग तरह के हैं, टेक्नो प्रोफेशनल बोथ हैं, या डिफरेंट टाइप्स की, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, जो भी कलर्स जो हैं, किनका किनका कम्बिनेशन है, इस पर कलर्स भी हमारा अलग एक है, उस पर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कलर्स के कम्बिनेशन एंड फंक्शनिंग्स के साथ में। इम्प्लीमेंट टू एक्शन एंड मॉनिटर, प्रोसेस को मॉनिटर करना, प्रोसेस में मॉनिटर करने वाले और उसको एसेस करने वाले का जजमेंट वो डिसाइड करता है बेंचमार्किंग में।
और हम फिर उसको उसी हिसाब से उसके कैलिबर को, उसके सिस्टम्स को ऑप्ट करते हैं। फेज 5 में है मैच्योरिटी आती है। हमारे पास क्या है? अटेंड द लीडरशिप पोजीशन। डिसीजन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये लीडरशिप के जो पोर्शन ऑफ लीडरशिप, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पार्ट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द क्रिटिकल पोजीशन हु सपोर्ट टू यू फॉर द डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटस पे हमें अपने इस टीम के साथ काम करना होगा, जिससे हम एक अल्टीमेट डिसीजन लेकर के और उसे करें फुल्ली इंटीग्रेट प्रैक्टिस इनटू द प्रोसेस। जो हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया है, एक बार उस पे हम कंक्रीटली स्ट्रांग स्टेप्स को ऑप्ट करेंगे। मेजर कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल बेस का हमको पोटेंशियल चाहिए, और इसी पोटेंशियल के साथ हम इन परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। बेंचमार्क को अगेंस्ट जो पीर ऑफ ग्रुप हैं, हमारे साथ के जो पास के लोग हैं, उन सब लोगों को हम जस्टिफाई करेंगे और सारे लोगों के पोटेंशियल को अपग्रेड करेंगे। अगर किसी में गैप आ रहा है तो डाटा कलेक्ट करेंगे, लोगों के डिफरेंट नेगेटिव थ्रेट्स को कलेक्ट करेंगे, रीजंस को कलेक्ट करेंगे, उसके प्रोसीजर्स या इम्प्लीमेंटेशंस या उनके कॉन्शियसनेस में, उनके डिवोशन में या उनके स्किल में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको इम्प्रूव करेंगे। और जो भी एक्शन लेना हो, उस एक्शन को हमें लेने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स पे आना होगा। तो ये रहा बेंचमार्किंग का, इतनी स्लाइड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो आपको इमीडिएट मिले। शेयर भी कर सकते हैं जिससे और किसी को बेनिफिट हो जाए। और किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप जो हमारे इसमें सब सिस्टम है, आप उस पर दे सकते हैं, मेल पे, फ़ोन पे। और HR से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, स्ट्रेस से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल लॉ से, इंडस्ट्रियल रूल से, या किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो इन सब क्लासेस के लिए आप क्लासेस के वेरिफिकेशन को अपना आप जोड़िए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन एक और से जो भी क्वेश्चन है, आपके आंसर आपको हम कोशिश करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एट द एंड ऑफ द session. From I am Dr. B.S. Mishra. Best wishes to all of you.